Dear students, you are most welcome to my class. Before we begin this lesson, I would like to draw your attention to some facts that you have already learnt almost entire basic necessary grammar needed to form nominal sentences. As you have learnt the demonstrative pronouns completely, you have learnt the personal pronoun completely, you have learnt the interrogative particles completely, you have learnt the personal suffixes completely, you have learnt entire form of singular, dual and plural. If you have any confusion, why I am repeating these things? In every lesson I am stressing on this fact. The reason is that if you have any confusion or any doubt, please go back to the previous lessons where these things have been taught in details. And that is why in the beginning of every lesson, I stress on these points. You have learned this one, you have learned that one, to urge you that if you have any confusion, please clear before. So far you have learnt 256 words of Arabic language, and with this I am sure that you can make simple nominal sentences. For achieving the best results, you have to keep on revising previous lessons. My dear students, you have learnt 147 types of sentences. In other words, language structures. Out of 147 sentences, we are going to revise only 7 types of sentences which you have already learnt. And these sentences are: Ahmad Tajir laysa indahu computer. And these sentences and these structures you have already learnt in the previous lessons. Ahmad Tajir laysa indahu computer. Ahmad is a trader. He does not have a computer. This is example of masculine. Now I am going to give the example of feminine. Zainab mudhifa laysa indaha falash. Zainab mudhifa laysa indaha falash. Zainab is an air hostess. She does not have a pen drive. Third sentence: هذا الرجل فقير ليس عنده قميص. هذا الرجل فقير ليس عنده قميص. This man is poor. He does not have a shirt. Interrogative particle के साथ هل عندك جواز? Do you have a passport? उसका जवाब नेगेटिव में, No, I don't have a passport. لا ليس عندي جواز. Who has a passport? من عنده جواز. Who has the passport? देखो who की अरबी क्या है? मन. Who has a passport? मन عنده जवाज. ये सवाल है. फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्ट्रक्चर है. हाउलाई रिजाल हुम ज़ाहिबून इलल मदीना. These are men, they are going to the city. Dear students, ये 7 sentences या 7 लैंग्वेज स्ट्रक्चर आप इसी के ऊपर दूसरे वर्ड यूज करके अपने सेंटेंस बनाने की कोशिश करें. And in this lesson, we will use several kind of nominal sentences. Dear students, now we are moving to the second section of this lesson, and this one is meant to teach new vocabularies. I will teach you meaning, pronunciation and use. So let us first learn the meaning. Ya'ishu. Ya'ishu. He lives. Qariya
उसका प्लूरल क्या है? कुरा। करिया, कुरा, विलेज। हयात, लाइफ। बसीता, सिंपल। जिद्दन, वेरी। एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिद्दन, आपको कहना हो वेरी ब्यूटीफुल, जमील जिद्दन, बहुत बड़ा। कबीर जिद्दन, बहुत छोटा। सगीर जिद्दन, तो इसका इस्तेमाल बहुत होता है। जिद्दन, वेरी। साकिन, सुक्कान, रेजिडेंट। साकिन, सिंगुलर। सुक्कान, प्लूरल, रेजिडेंट। तय्यब, इसका प्लूरल तय्यबून, साउंड प्लूरल है मैस्कुलिन के लिए। तय्यब, तय्यबून, गुड। जैसे आपको कहना हो कि मैं अच्छा हूं तो कहेंगे अना तय्यब। कहना हो कि हम लोग अच्छे हैं, नहनो तय्यबून। यारिफून, देनो, प्लूरल के लिए। यारिफून, देनो, देनो, वो लोग जानते हैं। बादुहुम अल बाद, देखिए दो सेंटेंस से मिलकर के, बल्कि आप ये कहिए तीन चीजें हैं। पहला बाज है, फिर उसमें एक चीज अटैच है हुम, बादुहुम, उसके बाद अल बाद। बादुहुम अल बाद, ये कहते हैं ईच अदर। बादुहुम अल बाद, ईच अदर। युसाइदूना, दे हेल्प, वो लोग मदद करते हैं। युसाइदूना, दे हेल्प। ला यतशाजरून, ला के मीनिंग पहले भी पढ़ चुके हैं, नो। और ये जब कभी किसी वर्ड से पहले आएगा तो उसके अंदर निगेटिव मीनिंग पैदा कर देगा। When la comes before any word, it will give the meaning of negative. La yatashajirun, they do not fight. वो लोग नहीं लड़ते हैं। La yatashajirun, they do not fight. बल, हम हिंदी में बोलते हैं बल्कि या लेकिन। अंग्रेजी देखो, बल अंग्रेजी में कहते हैं रादर। बल, रादर। यईशूना, अब आप याद करें, शुरू में आपने पढ़ा है, पहला वर्ड था यईशु, वहां क्या था? ही लिव्स। और ये जब यहां पढ़ रहे हैं यईशूना, दे लिव, यानी वो लोग रहते हैं, तो वो सिंगुलर हुआ और ये प्लूरल हो गया। यईश, ही लिव्स। यईशूना, दे लिव, वो लोग रहते हैं। सलाम, पीस। ये जब आप सलाम भी करते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, उसी में से ये सलाम, पीस। अमान, सिक्योरिटी। अमान, सिक्योरिटी। एंड दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी यूज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, अमन, अमान। अमान, सिक्योरिटी। तस्हीलात, फैसिलिटीज। तस्हीलात, फैसिलिटीज। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको नए वर्ड्स इस लेसन के अंदर सिखाए गए हैं। बिफोर गोइंग एनी फर्दर, आप पहले इस मीनिंग को अच्छी तरीके से याद कर लें। एंड व्हेन यू मेमोराइज द मीनिंग, try to picturize them. Create a picture in your mind so it will long last. It will remain for a long time in your mind. Now we are going to use these words in our sentences. So the first sentence is Ahmad ya'ish fil qarya. आपने पढ़ा है ya'ish, he lives. fi पहले पढ़ चुके हैं। qarya आज आपने पढ़ा है। qarya के माने village. Ahmad ya'ish fil qarya. It means Ahmad lives in the village. Just you compare English sentence with the Arabic one. You will find that both sentences are very similar. Ahmad ya'ish fil qarya. Ahmad lives in the village. उतना ही अल्फाज और वही कंस्ट्रक्शन। करिया के माने क्या है? विलेज। करियतहु सगीरा, ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। पर्सनल सफिक्सेस।
क़रियतुहु सगीरा, his village is small. Ismuha Nuh, its name is Nuh. अहमद गांव में रहते हैं और उनका गांव छोटा है, गांव का नाम नूह है। देखिए, क़रियतुहु सगीरा, his village is small. Ismuha Nuh, its name is Nuh. Al-hayatu fiha basitatun jiddan. Al-hayatu fiha basitatun jiddan. आप ऐसे भी कह सकते हैं, Al-hayatu fiha basita jiddan. हयात, लाइफ, फीहा, in it, बसीता, सिंपल, जिद्दन, वेरी। अब यहां जो फीहा है, यू कैन डू, द लाइफ इन इट इज वेरी सिंपल। लेकिन बेहतर क्या है, ये जो हा है अरबी का, ये कायदा होता है, वो लौट करके जा रहा है गांव की तरफ, तो कभी प्रोनाउन न यूज कर करके नाउन यूज कीजिए। द लाइफ इन द विलेज इज वेरी सिंपल। द लाइफ, अल हयात, देखिए अलिफ लाम लगा हुआ है, अल हयात फीहा, इट मीन्स इन द विलेज। बसीता जिद्दन इज वेरी सिंपल। वलाकिन सुक्कानुहा तय्यबून जिद्दन। देखिए जिद्दन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, पहले भी सेंटेंस में, दूसरे वाले में। लाकिन सुक्कानहा, वलाकिन सुक्कानुहा तय्यबून जिद्दन। वलाकिन सुक्कानुहा तय्यबून जिद्दन। वलाकिन की मीन्स बट, सुक्कानुहा इट्स रेजिडेंट। सुक्कान के माने रेजिडेंट, वो जो उसमें हा लगा हुआ है सफिक्स, उसके माने इट्स। इसके माने क्या होगा, यानी विलेज के रहने वाले, बट इट्स रेजिडेंट। तय्यब, तय्यबून, ये प्लूरल है तो तय्यबून इस्तेमाल किया, आर वेरी गुड। अब एक गो में आप इसको पढ़िए, वलाकिन सुक्कानुहा तय्यबून जिद्दन, बट इट्स रेजिडेंट्स आर वेरी गुड। वहुम यारिफून बादहुम अलबाद, हुम दे, यारिफूना नो, बादहुम अलबाद ईच अदर। वहुम यारिफून बादहुम अलबाद, दे नो ईच अदर्स। देखिए एक ही साथ पढ़िएगा, बादहुम अलबाद, इट मीन्स ईच अदर, यानी उनके बाज बाज को, इसके मतलब ईच अदर। गांव वाले एक दूसरे को जानते हैं। वहुम यारिफून बादहुम अलबाद, दे नो ईच अदर। वहुम युसाइदून बादहुम अलबाद, युसाइदून सेम सेंटेंस, हेल्प करने के माने में, मदद करना, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। वहुम युसाइदून बादहुम अलबाद, दे हेल्प ईच अदर्स। वहुम ला यतशाजरून मअ बादिहिम अलबाद, वहुम ला यतशाजरून मअ बादिहिम अलबाद, दे डू नॉट फाइट विथ ईच अदर। देखिए ला लग गया है, ला यतशाजरून, दे डोंट फाइट। बल यईशून फी सलाम व अमान, बल रादर, यईशून दे लिव, फी सलाम इन पीस, व अमान एंड सिक्योरिटी। बल यईशून फी सलाम व अमान, रादर दे लिव in peace and security. وفيها تسهيلات كثيرة مثل المدرسة والمستشفى والمحلات التجارية. अब this sentence is quite big. इसको एनालाइज कीजिए छोटा छोटा। वो फीहा, इसका मतलब क्या है, यानी उस गांव के अंदर, फी मीन्स इन, हा मीन्स इट, वो फीहा इन इट, तो अच्छा होगा कि हम कह दें इन द विलेज। और अगर ये प्रीपोजिशन पहले आ जाता है तो हम अंग्रेजी में जुमला देयर आर से शुरू करते हैं। वो फीहा तस्हीलात कसीरा, देयर आर मेनी फैसिलिटीज। तस्हीलात मीन्स फैसिलिटीज, कसीरा मीन्स मेनी। देयर आर मेनी फैसिलिटीज इन द विलेज। इन द विलेज किसका माने हो गया, वो फीहा यानी उसके अंदर। मिसल सच एज अल मदरसा स्कूल, वल मुस्तशफा हॉस्पिटल,
वल महल्लात तिजारिया एंड कमर्शियल शॉप्स वफ़ीहा तस्हीलात कसीरा मिसल मदरसा वल मुस्तशफ़ा वल महल्लात तिजारिया. There are many facilities in the village such as school, hospital, commercial shop. सुक्कान क़रियत नूह जय्यदून व मसरूरून, प्लूरल है. साकिन उसका प्लूरल क्या है? सुक्कान, ब्रोकन प्लूरल है. सुक्कान क़रियत नूह, the residents of Nuh village. जय्यदून are good, व मसरूरून and happy. Dear students, ये 10 सेंटेंस जो आप देख रहे हैं, इसको आप गौर से पढ़ें और इसको अप्लाई करने की कोशिश करें कि ये गांव के बारे में है तो आप कभी सिटी के बारे में सोचें. और अगर आप कोशिश करेंगे कि कौन सा वर्ड कैसे इस्तेमाल हुआ है, उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपकी लैंग्वेज पावर बढ़ती जाएगी. माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू द 4th सेक्शन which is meant for the formation of different sentences on the above mentioned pattern. अभी जो आपने 10 सेंटेंस ऊपर पढ़े हैं, we are going to form different sentences on the same pattern. वो पैटर्न क्या है? अहमद यईश फिल क़रिया, अहमद लिव्स इन द विलेज. अब सेंटेंस क्या है? अहमद यईश फिल मदीना, अहमद लिव्स इन द सिटी. अब देखिए, मदीना भी हटाइए. अहमद यईश फी मदीनती, अहमद लिव्स इन माई सिटी. अहमद यईश फी मदीनते का, अहमद लिव्स इन योर सिटी. अहमद यईश फी मदीनते मुंबई, अहमद लिव्स इन मुंबई सिटी. तो एक पैटर्न पर आपने कितने सेंटेंस बना लिया? अगर इसमें और आप बढ़ाना चाहें तो आप कह सकते हैं अहमद यईश फी हादल बैत, अहमद लिव्स इन दिस हाउस. अहमद यईश फी ज़ालिकल बैत, अहमद लिव्स इन दैट हाउस. यू सी, I can make not hundreds, thousands of sentences on this pattern. Second pattern क्या है? क़रियतुहु सगीरा, his village is small. अब सगीरा को रिप्लेस कीजिए. क़रियतुहु कबीरा, his village is big. एक ही सेंटेंस में आप वो भी सीखिए. क़रियतुहु जमीला, his village is beautiful. क़रियतुहु नज़ीफ़ा, his village is clean. और अगर वो डर्टी है तो आप कहिए क़रियतुहु वसिखा. वसिखा के माने डर्टी, आप खुद पढ़ चुके हैं. his village is dirty. अब इसी में अभी आपने जिद्दन सीखा है, उसका इस्तेमाल कर लें. क़रियतुहु सगीरा जिद्दन, his village is very small. क़रियतुहु कबीरा जिद्दन, his village is very big. क़रियतुहु जमीला जिद्दन, his village is very beautiful. क़रियतुहु नज़ीफ़ा जिद्दन, his village is very clean. तीसरा सेंटेंस उसके पैटर्न पर बनाइए. अल हयातु फ़ीहा बसीततुन जिद्दन, अल हयातु फ़ीहा बसीता जिद्दन. द लाइफ इन इट इज वेरी सिंपल. इन इट का मतलब क्या हो गया? इन द विलेज. अल हयातु फ़ीहा बसीता जिद्दन, द लाइफ इन द विलेज इज वेरी सिंपल. अब बसीता को रिप्लेस कीजिए रखीसा से. अल हयातु फ़ीहा रखीसा जिद्दन, द लाइफ इन द विलेज इज वेरी चीप. अल हयातु फ़ीहा गालिया जिद्दन, द लाइफ इन द विलेज इज वेरी एक्सपेंसिव. तो ये जो वर्ड आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसको मैं आप हर लेसन के शुरू में कहता हूं कि 256 पढ़ चुके हैं, 150 पढ़ चुके हैं, तो जितने अल्फाज पढ़ चुके हैं उनमें से आप देखिए कि इसमें कोई चीज फिट हो सकती है या नहीं. आगे देखें. वलाकिन सुक्कानुहा तय्यबून जिद्दन,
but its residents are very good. अब तय्यबून को रिप्लेस कीजिए दूसरे वर्ड से, वलाकिन सुक्कानुहा अगनियाओ जिद्दन, but its residents are very rich. वलाकिन सुक्कानुहा फुकराओ जिद्दन, but its residents are very poor. वलाकिन सुक्कानुहा तुज्जार, but its residents are traders. अब आप जितना भी बना सकते हैं कोशिश करो, और जो कोशिश करेगा, जो आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो आगे बढ़ेगा. फिर एक सेंटेंस है, वहुम यारिफून बादुहुम अल-बाद, दे नो ईच अदर. अब यारिफून, तो मैंने आपको बताया अगर ला को यारिफून से पहले लगा दें तो यही यारिफून क्या हो जाएगा, ला यारिफून. वहुम ला यारिफून बादुहुम अल-बाद, दे डू नॉट नो ईच अदर, दे डोंट नो ईच अदर. फिर एक सेंटेंस है, वहुम युसाइदून बादुहुम अल-बाद, दे हेल्प ईच अदर. ये आपने पढ़ा है. अगर युसाइदून से पहले ला लगा दें, वहुम ला युसाइदून बादुहुम अल-बाद, दे डू नॉट हेल्प ईच अदर. देखिए, सिर्फ ला को बढ़ा देने से सेंटेंस वही रहेगा और पूरा सेंटेंस नेगेटिव में चला जाएगा. अगर आप कहते हैं वहुम युसाइदून बादुहुम अल-बाद, दे हेल्प ईच अदर, और उससे पहले ला लगा दीजिए, वहुम ला युसाइदून बादुहुम अल-बाद, दे डोंट हेल्प ईच अदर. ऊपर आपने पढ़ा है, वहुम ला यतशाजरून मा बादिहिम अल-बाद, दे डू नॉट फाइट विथ ईच अदर. ला को ड्रॉप कीजिए तो सेंटेंस क्या बचेगा, वहुम यतशाजरून मा बादिहिम अल-बाद, दे फाइट विथ ईच अदर. आखिरी सेंटेंस आपने क्या पढ़ा था, सुक्कान क़रियत नूह जय्यदून व मसरूरून, द रेजिडेंट ऑफ नूह विलेज आर गुड एंड हैप्पी. तो ये जो आपको 8, 9, 10 सेंटेंस अभी आपको मश्क कराया जा रहा था, अब आपको जरूरत है कि जितने वर्ड्स आपने पढ़े हैं देखें कि उसमें से कितने वर्ड्स आप यहां उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और वो वर्ड्स, और ये देखिए जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि आपने 256 वर्ड पढ़े हैं, ये बेसिक वर्ड्स हैं. अरबी सीखने के लिए ये इंडिस्पेंसेबल हैं. दीज वर्ड्स आर इंडिस्पेंसेबल. ये तो आपके जो फाउंडेशन है उसमें जाना ही जाना था. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर लेसन, एंड दैट इज ए ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू अरबिक. एंड दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अरबी से पढ़ते चलते हैं, तब आप अंग्रेजी में आपका दिमाग काम करता है, अंग्रेजी के मीनिंग ढूंढता है, और दिमाग को जैसे ही आप अपना प्रैक्टिस करवाएंगे, जैसे उसको हैबिचुअल बनाएंगे, वो उसी तरीके से पकड़ता जाएगा. आप क्या करेंगे कि अंग्रेजी का वर्ड सुनेंगे और अरबी के वर्ड को रिकॉल करेंगे. यू विल रिकॉल अरबिक वर्ड्स. सो आफ्टर रीडिंग आउट वन सेंटेंस इन इंग्लिश, आई विल गिव ए पॉज so that you can do the translation, and उसके बाद मैं अपना ट्रांसलेशन आपके पास मैं करूंगा. then you can do the completion. he lives in कोलकाता. कोई भी शहर ले लें, कोलकाता की जगह पर लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, कोई भी मुल्क ले लें. he lives in कोलकाता. हुआ यईश फी कोलकाता. he lives in a big city. हुआ यईश फी मदीना कबीरा. he lives in a small city. हुआ यईश फी मदीना सगीरा. he lives in my city. हुआ यईश फी मदीनती. His city is big. मदीनतुहु कबीरा. अब अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो सिंगुलर था. ही डिफरेंट वर्ड थे.
अब प्लूरल का प्रैक्टिस कराएं। दे लिव इन द विलेज वहुम यईशून फिल करिया। दे लिव इन द विलेज वहुम यईशून फिल करिया। विलेज लाइफ इज सिंपल। विलेज लाइफ इज सिंपल। हयातुल करिया बसीता। विलेज लाइफ इज सिंपल। हयातुल करिया बसीता। अब इसी पर आप कह सकते हैं सिटी लाइफ इज कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट, जो भी आप कहना चाहें। हयातुल मदीना मुअक्कदा। विलेज लाइफ इज चीप। विलेज लाइफ इज चीप। हयातुल करिया रखीसा। बट सिटी लाइफ इज एक्सपेंसिव। वलाकिन हयातुल मदीना गालिया। वलाकिन हयातुल मदीना गालिया। द रेजिडेंट्स ऑफ माई विलेज आर गुड। देखिए, द रेजिडेंट्स ऑफ माई विलेज आर गुड। सुक्कानो करियती जय्यदून। सुक्कानो करियती तय्यबून आर गुड। दे हेल्प ईच अदर वहुम युसाइदून अल बाद। वहुम युसाइदून बादहुम अल बाद। दे हेल्प ईच अदर वहुम युसाइदून बादहुम अल बाद। What is the name of your village? मा इस्मो करियतिका। What is the name of your village? मा इस्मो करियतिक। अगर इराक में रहें तो पूछेंगे शो इस्मो करियतक। शो इस्मो करियतक। My village name is Nuh. My village name is Nuh. Ismo qaryati Nuh. Dear students, in this lesson we introduce some form of verb, but not completely. There are verb, but we took it as a single unit. And Arabic, like Sanskrit, has conjugation system. You can derive from one word several words. तो इसकी जो वर्ब आते हैं उसके अंदर आप कंजुगेशन होता है कि एक आदमी रहता है, दो आदमी रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, एक लेडी रहती है, दूसरी लेडी रहती है। तो इस तरीके से अब आने वाले जितने लेसन आपको आएंगे, अब वर्बल सेंटेंस शुरू होंगे। ये थोड़ा सा एक शुरू से बिगिनिंग था कि आपको थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कर दें। अब 29th 30th लेसन में आप वर्ब को एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे, और बगैर वर्ब को पढ़े आपके सेंटेंसेस और बड़े नहीं हो सकते हैं। अब तक के लिए आपने जितने पढ़े हैं सब नॉमिनल सेंटेंसेस थे, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आई एक्सपेक्ट, सिंसियरली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू that you will learn all these words, construction of the sentences, structure of the language. और जब ये चीजें आपके जहन में रहेंगी तो आगे का प्रोग्रेस बहुत आसान हो जाएगा। और ये जितने लेसन आपने पढ़े हैं, इनकी ब्यूटी क्या है कि कोई भी एक सिंगल वर्ड नहीं यूज किया गया है बगैर मीनिंग बताए हुए। Not a single word has been used without giving the meaning in advance. So take care of yourself. Bye bye.